خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام حاضرین کو اور ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام قبول ہو۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ میسج شروع کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ سبسکرائب کیا کریں۔ جب دوبارہ آپ سبسکرائب کو ٹچ کرتے ہیں تو پھر وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ تو آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ چینل جب آپ نے ایک دفعہ سبسکرائب کر دیا ہے، یعنی جب جو سبسکرائب جو ریڈ کلر کا لکھا ہوتا ہے جب وہ بلیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو سبسکرائب نہیں کرنا، نہیں تو وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ سو آئیے آج ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب میرے ساتھ نکالیے اور اس کی 14ویں آیت سے ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ سرد ہے نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے بلکہ تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خریدے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کلام خدا کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں آسیہ کے علاقہ کے اندر 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور 7 کلیسیاؤں میں یسوع مسیح جو ہے وہ وزٹ کرتا ہے۔ یہ 7 کلیسیائیں مسیح کی کلیسیا کہلاتی ہے۔ یسوع مسیح ان 7 کلیسیاؤں میں وزٹ کرتا ہے، اور اس میں سمرنا کی کلیسیا اور فلدلفیا کی جو کلیسیا ہے، ان سے خدا کو کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں۔ یہ دونوں کلیسیائیں جو ہیں یہ مصیبت اٹھانے والی ہیں، دکھ اٹھانے والی ہیں، مار کھانے والی ہیں، وفادار ہیں، ان کی محبت ٹھیک ہے، ان کی محبت سرگرم ہے، ان کی تعلیم ٹھیک ہے، یہ ہر لحاظ سے خدا کی نظر میں پرفیکٹ ہے۔ لیکن جو 5 کلیسیائیں ہیں ان سے خدا کو کوئی نہ کوئی شکوہ ہے، گلہ ہے۔ جیسے یہ لودیکیا کی کلیسیا کے تعلق سے آج ہم نے پڑھا ہے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ یسوع مسیح اور خدا کی خلقت کا مبدا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں پیدا ہوا ہے وہ سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے، جس نے جب بھی کلام کیا تو اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، آسمان زمین ٹل سکتی ہیں لیکن میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہرگز ہرگز نہ ٹلیں گی۔ سو وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔
मैं तेरे हाल को जानता हूं, मैं तेरे मुस्तकबिल को जानता हूं, मैं तेरे मासी को जानता हूं। क्योंकि वो उस वक्त से है जब गहराओं के ऊपर अंधेरा था, खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। तो यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं बाप के साथ मौजूद था। यानी यीशु मसीह शुरू से मौजूद है और वो रहेगा। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो सब कुछ जानता है। वो आपके बारे में जानता है। वो आपकी परेशानियों, आपके दुखों के बारे में जानता है। वो आपके हालात के बारे में जानता है कि आप क्या हैं। वो आपके चाल चलन के बारे में जानता है। वो आपके उठना बैठना, चलना फिरना, गुफ्तगू करना, वो आपका कैरेक्टर हर तौर से वो जानता है। इसलिए लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसका मतलब है कि वो आलमे कुल है। वो आपके दिलों को जानता है, वो आपके गुर्दों को जानता है, वो आपकी सोचों को जानता है, वो आपके ख्यालों को जानता है। एक दफा का जिक्र है कि यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में गए और वहां पर एक औरत आई जो बदचलन थी और उसने आकर यीशु के कदमों को चूमना शुरू किया और आंसुओं से धोना शुरू किया और बालों से साफ उसने किया। तो शमौन पतरस ने कहा कि अगर ये यीशु होता तो उसको पता होता कि ये औरत बदचलन है। तो यीशु मसीह ने फौरन उसकी तरफ देखा। आपने जीसस फिल्म में भी देखा होगा। यीशु मसीह ने फौरन उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है। इसका मतलब जो कुछ हम सोचते हैं उसके तल्लुक से भी वो जानता है, हमारे ख्यालों के तल्लुक से भी वो जानता है, दिल के तल्लुक से भी जानता है हमारे दिल में क्या है। यीशु ने कहा मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी ना दिया ताकि मैं अपने पांव को धो सकूं, लेकिन इस औरत ने आंसुओं से मेरे पांव को धोया और अपने बालों से साफ किया है। जो ज्यादा, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है और जिसके थोड़े गुनाह माफ होते हैं वो थोड़ी मोहब्बत दिखाता है। तो इसका मतलब है कि वो हमारे सब कामों को जानता है। और यहां पर वो शिकवा करता है, गिला करता है कि ना तू सर्द है, ना तू ठंडा है, ना तू सही तरह शैतान की तरफ है। सादा लफ्जों में, ठीक है जी, ना तू सर्द है, ना तू गर्म है, यानी ना तू सही तरह मेरी तरफ है, ना तू सही तरह शैतान की तरफ है, ना तू सही तरह मेरे साथ है। तू दोगला है, तू दो ख्यालों में डामाडोल है, तू दो बेड़ियों में सवार है। और जो भी कोई दो बेड़ियों में सवार होता है वो डूब जाता है। और जब हम भी दो दो ख्यालों में डामाडोल होंगे तो हम भी किनारे नहीं पहुंच सकते, हम भी डूब जाएंगे। पंजाबी जी कहते हैं बहुते घरां दा परोना आपको खाई हुंदा। एक घर में हो गया, उसने कहा, उन्होंने पूछा खाना खाना कि नहीं, उसने कहा नहीं जी मैंने नहीं खाना। दूसरे पे गया, मैंने नहीं खाना। तो जिस घर में आया है उन्होंने भी यही देर से सोचना चलो बाहर निकलिया कि तो खा ही आएगा। उन्होंने भी फिर कोनी उन्हें खाना पूछना, फिर उन्होंने रात को कैसे हो जाना। तो यहां पर लिखा है ना तू गर्म है और ना ही तू सर्द है। काश के तू गर्म या सर्द होता। यह लफ्ज जो काश के है इसका मतलब है कि खुदा अपने अंदर एक ख्वाहिश रखता है, खुदा अपने अंदर एक तमन्ना रखता है, एक आरज़ू रखता है आपके लिए, कलीसिया के लिए। काश के तू खुदा की तरफ होता, काश के तू शैतान की तरफ होता। पर ना तू सर्द है, ना तू गर्म है, ना तू शैतान की तरफ है, ना तू मेरी तरफ ठीक है, तू नीम गर्म है। थोड़ा सा शैतान को खुश करता है, थोड़ा सा खुदा को खुश करता है। पौलुस कहता है गलतियों के खत में, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। हम भी कई दफा कई प्रोग्रामों में आदमियों को खुश कर रहे होते हैं या हम अपने आप को खुश कर रहे होते हैं। हम भी कई दफा दोगली पॉलिसी चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं। फिर हम कहते हैं खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, हमारे हालात नहीं बदलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आगे लिखा है पास चूंकि तू ना तो गर्म है और ना ही सर्द, बल्कि तू नीम गर्म है। ये नीम गर्मी की हालत और सर्द हालत खुदा को पसंद नहीं है। आगे हमने पढ़ा था सर गर्म हो,
क्या हो? सरगर्म हो, यानी मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चल, मुकम्मल तौर पर खुदा की वफादारी कर, मुकम्मल तौर पर खुदा को खुश कर। अपने आप को, इंसानों को खुश ना कर, या शैतान को खुश ना कर, या अपने बदन को खुश ना कर। और लिखा है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। इसका क्या मतलब है कि खुदा ने हमें अपने मुंह में रखा हुआ? हाँ जी, कोई बताए इसका क्या मतलब है? मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को। क्या हम खुदा के मुंह में रहते हैं? वो तो कहता कि मैंने तुम्हारी सूरतों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, वो तो कहता तुम मेरे हाथ में हो। लेकिन ये क्या बात हुई? खुदा कहता मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, क्योंकि मुझे तुझसे ये शिकायत है, ना तू सर्द है, ना तू गर्म है, तू नीम गर्म है। इसका मतलब यह है कि खुदा अपनी बादशाही से हमें निकाल फेंकने को है, हमेशा की जिंदगी से, जन्नत से, फिरदौस से वो हमें निकाल फेंकने को है। एक मिसाल देना चाहता हूं कि एक बच्चा अगर लगातार स्कूल ना जाए तो उसका नाम वहां से काटा जाता है। हम तौबा तो कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, और हम बताते हैं कि 4 बातों पर अमल आपने करना है, रसूलों से तालीम पानी है, रफाकत रखनी, रोटी तोड़नी और दुआ करने में मशगूल रहना है। लेकिन सोचें कि साल में आप कितनी गैर हाजिरियां करते हैं, और अगर आप इसी तरह करते रहे तो खुदा आज कहता है मैं अपने मुंह से तुझे निकाल फेंकने को। ऐसा ना हो कि खुदा हमारा नाम किताबे हयात से काट डाले, ऐसा ना हो कि हम खुदा की बादशाही से बाहर रहें। 10 गवारियों की मिसाल आपको याद है, 5 जो थी वो ठंडी थी और 5 सरगर्म थी, और जो सरगर्म थी वो जश्न में शामिल हो गई। तो जब यीशु मसीह आएगा तो वो लोग जो सरगर्म हैं, जिनकी कुप्पियों में तेल है, जिनकी मछलियां चल रही हैं, जिनकी जिंदगियों में रूह के फल हैं, रूह की नेमतें हैं, जो कलाम के मुताबिक ठीक है, जिनकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ी, जो सरगर्म है शुरू से लेकर आखिर तक, जान देने तक, आखिरी दम तक, जो लोग सरगर्म रहेंगे वो ही जब यीशु आएगा तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और जो सुस्त कुमारियां होंगी वो यहां पर ही रह जाएंगी। तो लिखा है चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं। माली तौर पर खुदा ही हमें हर किस्म की दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है, इस्तिश्ना की किताब में लिखा हुआ है। लेकिन जब दौलत आ जाए अमीर आदमी की तरह और उस वक्त हम खुदा को भूल जाएं या खुदा को छोड़ जाएं, तो कलाम में क्या लिखा है? अब ऐ खुदा को भूलने वालों जरा गौर करो, मैं तुम्हारी बाल बाल खोपड़ी को चीर डालूंगा, कोई बचाने और छुड़ाने वाला नहीं होगा। जब दौलत आ जाए मुसरफ बेटे की तरह तो हम बदचलनी में चले जाएं या हम अपने बाप से दूर चले जाएं, तो यह हालत ठीक है? बोले हैं यह हालत ठीक है? जब दौलत हमारे हाथ में आ जाए, हम अपने बाप से कहें हमें दौलतमंद बना दे, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, और जब सब कुछ आ जाए हाथ में तो हम अपने खुदा को छोड़ दें या भूल जाएं, तो क्या ये बात ठीक है? मुसरफ बेटे की तरह ये बात ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त है। तू क्या है? कमबख्त। और आगे लिखा है और कबार और गरीब और अंधा और नंगा है। रूहानी तौर पर तू गरीब है। याद रखें खुदा की नजर में वो दौलतमंद है जिसके पास निजात है, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास खुदा का रूह है। रूहानी तौर पर वो दौलतमंद है। और बाकी जो चीजें हैं उसका वादा है पहले ढूंढो तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी, तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें नाम में ही दे दूंगा। बाकी सारी चीजें वो हमें दे देगा। लेकिन रूहानी तौर पर हमें अमीर होना ये बहुत ही जरूरी है। मसीह हमारी खातिर गरीब बन गया ताकि हम दौलतमंद हो जाएं। सो यहां पर लिखा है तू क्या है? गरीब है। तू क्या है? अंधा है। इस जहान के खुदा ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, तेरी आंखों को बंद कर दिया है, दिमागों पर पर्दा डाल दिया है। और आगे लिखा तू नंगा है। तू क्या है?
आप जानते जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने क्या कहा? हम तो नंगे हैं, यही कहा ना उन्होंने। तो खुदा ने एक बर्रा ज़बह किया और उनके चमड़े बनाकर उनको पहनाए, लेकिन वो उनकी निजात के लिए काफी ना थे। फिर उसने अपने बेटे यीशु को भेजा तो उसने हमारा कफारा दिया। कफारे का मतलब है ढांप देना। और धान जिससे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा। यानी वो कहता तू नंगा, इसका मतलब यह है कि तू गुनाह में है। आदम से खुदा ने कहा कि आदम तू कहां है? फिर आदम और हवा डरना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर तू गुनाह में है, तू मालदार भी हो गया है, दौलतमंद भी हो गया है, सब कुछ तेरे पास है, लेकिन अगर तू गुनाह में है तो इसका मतलब है कि तू नंगा है, तुझे अभी निजात के कपड़े पहनने की जरूरत है। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, मैं तुझे मशवरा देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। खुदा का कलाम जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, कुंदन से भी बेहतर है, और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में अपने शिगिर्दों को कहा कि तुम तलवार को खरीदो। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो उसको चाहिए कि वो खरीद ले, उसको ले ले, खुदा के कलाम को ले ले। हम तो आपको मुफ्त देंगे, लेकिन पिछले दिनों में OM टीम यहाँ पर आई हुई थी तो 1000 रुपए की एक बाइबल दे रही थी। कहते हैं कि 1000 रुपए की। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं। अगर आपको शौक है रूहानी जंग करने का, खुदा की बात में दाखिल होने का, खुदा के साथ चलने का, तो आपको खरीद लेनी चाहिए। सो यहाँ पर लिखा है, मुझसे क्या ले ले? सोना ले ले, खरीद ले, और सफेद पोशाक ले ले। जब एक लड़के और लड़की की शादी होती है तो व्हाइट लिबास पहनाया जाता है। ये पाकीज़गी की निशानी है, रीत वेले जिसको आप कहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा हमें व्हाइट लिबास देता है, खुदा हमें पाकीज़गी का लिबास देता है, निजात का लिबास। मुकाशवा की किताब 19वें बाब में लिखा है कि बरे की शादी आ पहुंची और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसने महीन कतानी और अर्गवानी लिबास पहन लिया, स्पेशल लिबास। नए अहदनामे में लिखा हुआ है कि एक जगह पर शादी थी तो वहां पर एक शख्स आ गया, उसने शादी का लिबास ही पहना हुआ था, तो वो जबरदस्ती अंदर आ गया। तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा कि इसको पकड़ो और इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि इसको ये पता नहीं कि यहाँ पर शादी वाला लिबास पहनकर आते हैं। इसी तरह जब यीशु मसीह ने आना है तो जिन लोगों ने निजात का लिबास पहना होगा वो उनको लेकर आसमान पर चले जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, ताकि तू दौलतमंद हो जाए। अच्छा, ऊपर वो कह रहा है कि तू दौलतमंद है, तू मालदार हो गया, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि मुझसे सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद। इसका मतलब जिसके पास खुदा का कलाम है, जिसके पास खुदा का रूह है, जिसके पास खुदा का बेटा है, जिसके पास निजात है, वो असल में सही दौलतमंद है। असल में वो एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम और उसकी खास उम्मत और मलकियत है। असल दौलतमंद मैं और आप हैं रूहानी तौर पर। हालेलुया। क्योंकि हमारा बाप बहुत अमीर है, आसमान उसका है, जमीन उसकी है, सोना उसका है, चांदी उसकी है, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ उसका है। तो हम किसके बेटे और बेटे हैं? खुदा बाप के। तो फिर हम दौलतमंद है कि नहीं? मैंने तो कभी जिंदगी में अपने आप को, जब से मैंने मसीह को कबूल किया, मैंने कभी अपने आप को गरीब नहीं कहा ना। मैं कभी कोई साढ़े घर आए तो मैं कहा ऐ साडा गरीब खाना। मैंने कई लोगों को देखा चंगा भला घर होता तो कहने साडा गरीब खाना। शुक्र नहीं करते कि खुदा ने हमें इतना अच्छा कर दिया। तो कभी अपनी जिंदगी में ये ना कहें कि हम गरीब हैं, क्योंकि अगर हम खुदा के बच्चे हैं, बादशाह के बेटे और बेटे हैं, तो हम अमीर हैं। यह कलाम हमें बता रहा है, ताकि तू दौलतमंद हो जाए। हालेलुया। सो आगे लिखा है, और सफेद पोशाक ले ले ताकि उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। यह भी कलाम को कहा गया है, आंखों में लगाने के लिए सुरमा। आप जानते हैं बसों में जब आप सफर करते हैं तो वहां पर सुरमा बेचते हैं। ये जी ठंडा सुरमा है, ये जी आंखों से जाला उतार देता है,
अगर आपको धुंधला नजर आता है तो वो ठीक नजर आना शुरू हो जाता है। वो बड़ी तारीफें करते हैं सुरमे की, लेकिन हमारे पास कौन सा सुरमा है? वो वाला नहीं जो आप लगाते हैं, ठीक है ना? वो आंखों को खूबसूरत बनाता है, खूबसूरत लगता है इंसान, लेकिन असल सुरमा खुदा का कलाम है। इसको ले ले, इसको पढ़। अगर तू पढ़ा लिखा है तो इसको क्या कर? पढ़, ताकि तेरी जिंदगी साफ हो जाए, ताकि तेरा दिल साफ हो जाए, ताकि तेरा ज़हन साफ हो जाए, ताकि तेरी आंखें साफ हो जाएं, पाक हो जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो लिखा ताकि तू बीना हो जाए, क्योंकि तू अंधा है। तू क्या है? अंधा है, इसलिए सुरमा खरीद ले, सुरमा ले ले। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तंबीह करता हूं। कलाम में लिखा है कि खुदा जिनको बेटे और बेटियां बनाता है उनको कोड़े भी लगाता है, उनको मलामत भी करता है, ताकि आगे लिखा वो हरामजादे ना ठहरें, बल्कि खुदा के बेटियां और बेटे ठहरें। और आगे लिखा हुआ है जी, बस सरगर्म हो। आज का मैसेज क्या है आपके लिए? बस सरगर्म हो। अगर तू ठंडा है, नीम गर्म है, इस हालत को छोड़, सरगर्म हो, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। सरगर्म होंगे तो दुआ करेंगे, नहीं तो 11 बजे उठेंगे। सारा गर्म होंगे तो सुबह सवेरे उठकर दुआ करेंगे ना। तो जब सरगर्मी है ही नहीं तो फिर तो अपने टाइम से उठेंगे ना, अपनी मर्जी से उठेंगे। इसलिए तू क्या हो जा? सरगर्म और तौबा कर। याद रखें बपतिस्मा एक ही है, लेकिन कलाम में लिखा है कि बस तौबा कर। अगर तू गिर गया है तो दोबारा तौबा कर। दोबारा बपतिस्मा नहीं, एक ही बपतिस्मा जो बड़े होकर आप लेते हैं। लेकिन अगर गुनाह में गिर गए हैं, कोई गलती हुई है, कोई खता हुई है, तो फिर दोबारा तौबा करें। मुशरफ बेटा चला गया खुदा की बात सही से ना, फिर जाकर उसने तौबा की और फिर आकर बाप के सामने इकरार किया कि मैंने तेरी नजर में और खुदा की नजर में गुनाह किया है। अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहला सकूं, तू मुझे अपने नौकरों की मानद रख ले। तो क्या बाप ने उसको नौकर बना लिया? उसको उसके ओहदे पर दोबारा उसको बहाल किया, उसको अंगूठी पहनाई, उसकी हजामत करवाई, उसको बादशाही लिबास दोबारा उसको पहनाया गया। तो कलाम में क्या लिखा है? मेरे पास वापिस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो खता हो भी जाए, गुनाह हो भी जाए, तो हमें वापस आकर तौबा करने की जरूरत है। लिखा, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब है कि इस कलीसिया ने अभी तक अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला मसीह के लिए। यह अपने आप को मसीह की कलीसिया कहती होगी, लेकिन देखें कितनी शिकायतें हैं मसीह को। फिर हम कहते हैं मसीह आता ही नहीं हमारी जिंदगी के अंदर, वो तो हमारे दिल में आता ही नहीं है। यह भी शिकायत है कि अभी तक इस कलीसिया ने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला। और मसीह ने मरकस की इंजील में यह फरमाया कि ये उम्मत होंठों से मेरी ताजीम करती है, पर इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं, चूंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं और मेरे हुक्मों को बिल्कुल रद्द कर देते हैं। और आगे लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। अब ये नसीहत है कि लुधिकिया की कलीसिया में से जो भी कोई शख्स गालिब आएगा उसको मैं अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बिठाऊंगा। जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठ गया, अगर ये कलीसिया भी गालिब आएगी अपने ऊपर, अपनी ख्वाहिशात पर, दुनिया पर, अब्लीस पर, तमाम आजमाइशों पर, जो गालिब आएगा और जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो यीशु मसीह के तख्त के साथ बैठेगा और इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो आज ये कलाम लुधिकिया की कलीसिया से नहीं हो रहा, यह 2020 साल पहले हुआ था। आज ये कलाम मेरे और आपके साथ हो रहा है कि हमारी क्या हालत है। क्या हम सर्द हैं? क्या हम नीम गर्म हैं? या हम सरगर्म हैं? फैसला हमारे हाथ में है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इंसान की अपनी रूह के सिवा कोई शख्स उसको नहीं जानता कि वो क्या है।
इसलिए आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। पौलुस कहता है अगर हम अपने आप को जांचते तो हम सजा ना पाते। इसलिए तुम में से बहुत सारे कमजोर पड़ गए, बहुत सारे सो भी गए। अगर वो अपने आप को जांचते तो वो सजा ना पाते। आज अपने आप को जांचिए, आज अपने आप को परखिए, टटोलिए, देखिए कि मेरी जिंदगी में कौन सी खुदा को शिकायत है, कौन सा गिला है। मलाकी की किताब में लिखा है पहले बाब की 9वीं आयत में, अब जरा खुदा को मनाओ, अब जरा खुदा को मनाओ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, मैं तेरा दिल दुखाया या मैं कोई मेरे को कैसी मिस्टेक हुई है तो मैंने दस। और ये कलाम में भी लिखा है अगर तेरा भाई गुनाह करे तेरे पास 7 दफा आए, बल्कि 70 दफा लिखा है, आकर अपने गुनाह का इकरार करे तो उसको क्या कर दे, माफ कर दे। तो इसी तरह जब हम खुदा के पास आते हैं तो हमें ये कहना चाहिए खुदावंद मुझे बता, मुझ पर ज़हर कर, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, खता हुई है, या मुझसे कोई तुझे शिकायत है, गिला है, शिकवा है, तो मेरे ऊपर अयां कर, मेरे साथ बोल, मेरे साथ कलाम कर, और मेरी रफ्शों को देख, मेरे ख्वाब की छानबीन कर, और अगर मुझ में कोई ऐसी कमी है, कमजोरी है, तो उसको मुझसे दूर कर। आज से ये दुआ करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक होते चले जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे।